now substituting the value of Q in equation 3. Now substituting the value of Q in equation 3. What we can write? We can write P equals to V into I into T by T, and T cancelled out. So what will be the result? The result will be P equals to V into I. So this is the derivation of formula for power in terms of voltage and current. Okay. Now how we can write the formula in terms of current and resistance? How we can write formula in terms of voltage and resistance? So let us see. So what we know P equals to V into I. Okay, so how we can write, and we also know that V equals to IR. V equals to IR. So we can write, suppose this is equation 1, this is equation 2. So from equation 2, substituting the value of V in equation 1, what we can write? P equals to V into I, or what we can write? V IR into R. IR into I. So what we can write here? I square R. So this is in terms of IR. That means if the value of current and resistance is given, we can calculate power. Here, if the value of voltage and current is given, we can calculate the power. Okay, now how we can write in terms of voltage and resistance? So V equals to IR, since V equals to IR. What we can write? We can write I as V by R. Okay, this is equation. Suppose this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, and this is equation 4. So from equation 4, substituting the value of I in equation 3. So what we can write? We can write P equals to I square R, and I square R can be replaced by V by R square into R. So what we can write? V square by R square into R. So R square and R will cancel. So V square by R. This formula is in terms of voltage and resistance. Okay, so if the value of resistance will change and the voltage is fixed, so power is inversely proportional to the resistance in case voltage is fixed. अगर वोल्टेज फिक्स है तो पावर किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे. ठीक है, मतलब और रेजिस्टेंस का कैसे डिपेंड करेगा? तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
resistance if voltage is fixed. So this is about power, about derivation of different formulas related to power. Now it is about heating effect of electric current, okay, and electrical energy. कोई भी एप्लायंस को जब हम लोग यूज करेंगे तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, ओके. सो हाउ वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस. हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? तो फॉर दैट वी हैव टू टेक टाइम ऑल्सो. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितने समय तक वो एनर्जी कंज्यूम किया. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लायंस. And before going to electrical energy, let us understand about the power rating of any electrical appliance. What is the meaning of power rating of any electrical appliance? Suppose if you are operating a fan in your home or house, its power rating is 100 watt. So what is the meaning of 100 watt? अगर पंखा का बात करें जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है, तो उस पंखे की पावर रेटिंग होती है 100 वाट. तो इस 100 वाट का मतलब क्या है? ओके. अगर एक बल्ब हम लोग जो पीला वाला बल्ब यूज करते हैं, ठीक है, येलो बल्ब जिसमें टंगस्टन लगा रहता है फिलामेंट, ठीक है, तो उस बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है? मान लो कि अगर 100 वाट की है, 110 वाट की है या 40 वाट की है, कोई कितने भी वाट की है, तो इस पावर रेटिंग का मतलब क्या है ये आप समझ रहे हैं. मैंने बताया आपको 1 वाट का मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के द्वारा 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है तो उसकी पावर रेटिंग 1 वाट के बराबर है. ठीक है. वैसे ही अगर 100 वाट फैन की पावर रेटिंग अगर 100 वाट है, ठीक है, तो वेन एवर इट इज वाट, if power rating is given in watt, then the consumption time is in second. मोस्टली ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर वाट में दिया है तो समझना यही है कि कंजम्पशन टाइम उसका सेकंड में होगा. मतलब 100 वाट अगर कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की पावर रेटिंग 100 वाट है, इट मीन्स दैट इट कंज्यूम्स 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. तो यू कैन से सपोज इफ समवन विल आस्क यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ बल्ब हुज पावर रेटिंग इज 40 वाट, सो इट मीन्स दैट इट कंज्यूम्स 40 जूल एनर्जी इन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड. क्लियर. सो यू कैन सेट, you can tell about the power rating of any electrical device. Now it is about energy, electrical energy, how we can calculate electrical energy that is being consumed by any electrical appliance. Okay, electrical energy. Now in class 9 we have studied how to find energy. Okay. And there we have studied that the energy produced will be equals to the amount of work done, or the work done will be equals to the amount of energy supply. मतलब जितनी एनर्जी हम देंगे उतना काम होगा.
ठीक है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा काम, कम एनर्जी कम काम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे वहां पे करते थे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पावर बराबर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है W/T। ओके, नाउ अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वर्क को एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू E/T। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। इन theoretical it is equal, but practical work and energy will not be equal। और इसके बारे में आपने एक टर्म सुना होगा इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी, तो किसी भी चीज की इफिशियंसी 100% नहीं होती। ठीक है, जैसे हम या आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना रहती है, गलती कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ कि आप जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं उतना ही वर्क नहीं होता है प्रैक्टिकल केस में। मतलब कि इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। 100% अगर इफिशियंसी हो जाएगी तो वो चीज आइडल हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली इन प्रैक्टिकल केसेस इफिशियंसी कैन बी 100%, लेकिन थ्योरी में हम लोग मान सकते हैं कि जितना वर्क हो रहा है उतनी एनर्जी सप्लाई की गई, या जितना एनर्जी सप्लाई किया गया उतना वर्क हो रहा है। ओके, सो वी कैन राइट P इक्वल्स टू E/T और E इक्वल्स टू P इंटू T। That means electrical energy can be calculated using this formula। Okay, electrical energy consumed is equals to P into T। Now about the commercial unit of electrical, मतलब हम लोग जो घर में कंजप्शन करते हैं, मतलब हमारी जो रीडिंग आती है इलेक्ट्रिक मीटर की जो रीडिंग होती है वो किस में आती है, यूनिट। ओके, तो एक यूनिट कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग बाय सेइंग 1 यूनिट इन इलेक्ट्रिक मीटर। ओके, इन इलेक्ट्रिक मीटर इफ वी से 1 यूनिट इट मीन्स दैट your household electrical appliance consumes 1 kilowatt electrical energy in 1 hour। Okay, that means 1 unit equals to 1 kilowatt per hour। मतलब अगर आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं अगर उन सबको ऑन कर दिया जाए, ठीक है, तो आपके घर में एनर्जी का कंजम्पशन 1 किलोवाट पर आवर है। 1 यूनिट का मतलब। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मतलब कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलोवाट आवर। ओके, कॉमर्शियल unit of electrical energy equals to 1 kilowatt hour। Okay, and suppose if we have to represent or if we have to write it in the form of joule, okay, so how we can write in joule? It is very simple। 1 kilowatt hour means what? 1 kilowatt hour means what? 1000
watt hour. Okay, 1 kilowatt equals to 1000 watt hour, and we can also write it as 1000 into hour can be represented in second by multiplying it. First of all, convert it in minute, then after convert it in second. So in 1 hour there are 3600 seconds. Okay, so it will be 3603. So in standard form we can write it as 3.6 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, joule. Watt and second. So watt second means what? Joule. Okay, so 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. I hope it is clear about the commercial unit. Okay, so basically in terms of, that means whenever the reading of electric meter is taken, the consumption is given in units. That means suppose your monthly consumption is 100 unit, it means what? So 100 unit means 100 kilowatt per, this is for month, this is for month. Okay, 100 kilowatt per month. Clear? So this was about the commercial unit of electrical energy. Now it comes about heating effect of electric current. Okay, so what is the heating effect of electric current? What is the meaning of heating effect of electric current? So heating effect of electric current means when an electric current is passed through a conductor whose resistance is very high, then it produces heat energy. And for every conductor, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उन सबसे अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करें तो वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. कोई कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अब ज्यादा हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी. जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, उसमें हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा. क्लियर? तो जो हीट एनर्जी, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस heat energy, and this is called heating effect of electric current. Okay, now how we will calculate the amount of heat energy produced? Okay, so we know power equals to work by time, and we know energy is equal to P into time. That means power is, in terms of energy, we can write it as E by T. So energy is equal to P into T, and this E is what? For heating effect of electric current, this E is heat energy. That means H equals to P into T. So there are different types of electrical appliances which uses the heating effect of electric current and which produces heat energy, like heater, iron, electric iron, okay, electric heater,
geyser, all these appliances are what? All these appliances are based on heating effect of electric current. That means when an electric current will be passed through a conductor, it will produce heat energy. Okay, so now here it comes that the heating element. The heating element of any electrical appliance is made up of alloys. Clear? Heating element of every electrical appliance is made up of alloy. So why we use alloy rather than a conductor? हम लोग एक कंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते, एलॉय का यूज क्यों करते हैं? तो कारण क्या है कि एलॉय जो है जल्दी जलता नहीं, ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाई वी यूज एलॉय एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। मतलब आयरन में एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों? जैसे नाइक्रोम वगैरह का यूज किया जाता है। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय। टंगस्टन क्या है? एक एलॉय। एलॉय मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एलॉय के बारे में, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्स। ओके, तो alloys are used as a heating element in any electrical appliance because it doesn't go oxidation easily. ये जल्दी जलता नहीं। And second, its melting point is very high. ये जल्दी पिघलता नहीं। जैसे आप कोई चीज को जब गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? वो मेल्ट हो जाता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट कम है, बहुत कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करने लगता है। फ्रिज से निकाल के बाहर रखेंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एक कंडक्टर जो है, नॉर्मली अगर इसको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो एलॉय का यूज हम लोग हीटिंग एलिमेंट के तौर पे करते हैं। कारण क्या है? ये जल्दी जलता नहीं है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तीसरा चीज, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, एलॉय की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। सो आप समझ सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ कहाँ पे है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रहा है, आपके घर में जो गीजर यूज हो रहा है, आपके घर में जो बल्ब यूज हो रहा है, अभी तो एलईडी हो गया सब जगह, पहले पुराना बल्ब यूज होता था 100 वाट 110 वाट का। तो उनमें क्या होते थे? एलॉयज का यूज होता था और ये सारे फंक्शन करते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज कैसे काम करता है? तो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी काम करता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके घर में यूज होता है वायर, मतलब फ्यूज जो यूज होता है, उस फ्यूज का जो वायर जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, क्यों? सो यू कैन आंसर इट वेरी इजिली। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर will be high, then it will produce more heating effect. अगर रेजिस्टेंस फ्यूज के वायर की बहुत ज्यादा रहे तो ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जब ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? जैसे ही सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो H का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे हैं? P इंटू टी।
और H को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P को दूसरे फॉर्म में V इंटू आई इंटू टी। मतलब जैसे ही वोल्टेज या करंट की वैल्यू बढ़ी वैसे ही हीट एनर्जी बढ़ा, और जैसे ही हीट एनर्जी बढ़ा क्या होगा, द वायर विल मेल्ट एंड द सर्किट विल ब्रेक, टूट जाएगा, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन योर हाउस विल स्टॉप। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं अपने घर में। क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़ा बहुत फ्यूज के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। In next video we will discuss some numericals based on this chapter. So till then, thank you, bye, and take care of yourself. Thanks.